فلاحی ریاست کا قیام اور قانون کی حکمرانی ہمارے اولین مقاصد ہیں. جن لوگوں نے اقتدار میں آ کر قومی خزانے کو نقصان پہنچایا اور ان کو NRO نہیں دیں گے. وزیر اعظم عمران خان کا میاں والی میں عوامی اجتماع سے خطاب. وزیر اعظم عمران خان کا ضلع میاں والی کا دورہ. میاں والی شہر میں 5 کروڑ روپے سے بننے والے سٹی پارک اور میاں والی تا سرگودھا 2 رویا شاہراہ کے پہلے مرحلے کا افتتاح. نمل جھیل کے قریب 15 ایکڑ رقبے پر 1 کروڑ روپے سے میواتی جنگل لگایا گیا ہے. وزیر اعظم نے ضلع میاں والی کے لیے 35 ارب 92 کروڑ روپے سے زائد کے 23 منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا. RSS کے انتہا پسندانہ نظریات سے متاثرہ BJP کی پالیسیز خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں. اگر بھارت سازگار ماحول قائم کرتا ہے تو پاکستان بھی اقدامات اٹھانے کو تیار ہے. امریکہ خطے میں استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرے. وزیر اعظم عمران خان کی اسلام آباد میں امریکی سینٹ کے 4 رکنی وفد سے گفتگو. وزیر اعظم عمران خان کی پالیسیوں کی بدولت ملک کی معیشت میں بہتری. رواں سال برآمدی مصنوعات میں 27% اضافہ ریکارڈ. تحصیلات زر 10.55 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں. ٹیکسٹائل اور IT برآمدات میں بھی اضافہ. مجموعی ملک کی پیداوار 284 ارب ڈالر سے بڑھ کر 315 ارب ڈالر کی سطح پر پہنچ گئی. گرین لائن منصوبے پر وفاق نے 35 ارب روپے خرچ کیے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کتنے پانی میں ہے کراچی کے عوام بہتر جانتے ہیں. نوجوان نسل کو شدت پسندی سے دور رکھنے کے لیے مثبت سرگرمیاں فراہم کرنا ہوں گی. وزیر اطلاع چودھری فواد حسین کی کراچی میں 14ویں عالمی اردو کانفرنس کے موقع پر میڈیا سے گفتگو. عالمی بینک کا افغان عوام کی مدد کے لیے 28 کروڑ ڈالرز جاری کرنے کا اعلان. یہ امدادی رقم بین الاقوامی ڈونرز کی جانب سے دی جائے گی. یہ فنڈز موجودہ پروگراموں میں مالیاتی خلا پورا کرے گا تاکہ صحت اور غذائیت کی خدمات براہ راست افغان عوام تک پہنچائی جا سکیں. عالمی بینک کا اعلامیہ. پاکستان سمیت دنیا بھر میں پہاڑوں کا دن منایا جا رہا ہے. مقصد انسانی زندگی، خوراک اور پانی کی فراہمی میں پہاڑوں کے کردار کی اہمیت سے متعلق شعور اجاگر کرنا ہے. اس سال دن کا موضوع پہاڑوں میں سیاحت کی پائیدار ترقی ہے. نور مقدم کی خطاطی اور پینٹنگز کی نمائش. پشاور کے روایتی کھانوں اور اسلام آباد کے وصف میں سجے کرسمس ٹری کا احوال بھی کیبنٹ ٹاور کا حصہ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کیبنٹ ٹاور کے ساتھ. میں ہوں رضوان علی احمد. میں ہوں صدف علی خان. خبروں کی تفصیل شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. Today we celebrate International Mountain Day on the theme of sustainable tourism. I'd like to highlight the great beauty and importance of our majestic mountains. But more importantly, I would like to highlight the need to support and empower communities who live on and around these mountains. One way of doing this is through ecotourism. Climate change is real, it is with us now, and we do need to mobilize the political will and the resources that it takes to combat climate change. UNDP stands behind the government of Pakistan in their efforts to combat climate change and also to address other environmental challenges and to become one of the world's leading countries for sustainable development. کون ہیں آپ؟ تمہارا دادا سلیمان شاہ. حکمت جانے بغیر حکومت نہیں کی جاتی. ارطغرل نے کھیل کھیلا ہمارے ساتھ. وہ خاموش نہیں بیٹھے گا.
अलंजक और ड्रैगोस को हम एक एक करके खत्म कर देंगे। आज नहीं तो कल वो जान जाएगा कि मैं कौन हूँ, फिर वो दुश्मनी निभाएगा। ये वक्त है कि पहाड़ की तरह इरादों पर डट जाएं हम लोग। अर्तुल के कमजोर पहलुओं को निशाना बनाना हमारा हदफ होगा। किले को तबाह करने की ख्वाहिश सिर्फ अलंजक की नहीं, हलाकू खान की भी है। तुम्हारे पापा का असली कातिल मैं इसी वक्त तुम्हारी जान ले लूंगा। कैबिनेट आवर के आगाज़ में आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि फलाही रियासत का क़याम और कानून की हुक्मरानी हमारे अव्वलीन मकासद हैं। कोई ताकत पाकिस्तानियों को अजीम कौम बनने से नहीं रोक सकती। जिन लोगों ने इक़्तिदार में आकर कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया, उनको NRO नहीं देंगे। वो मियांवाली में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। मियांवाली के अवाम ने हमेशा वजीर आज़म इमरान खान के साथ अपनी भरपूर मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया है। जिला मियांवाली के लिए मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह और संग बुनियाद के मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से खुद इनहसारी की मंजिल हासिल करेगा। हम किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। उन्होंने कहा कि कानून का एहतराम मुहज़्ज़िब माशरे की पहचान है, जहाँ चोरों की जगह जेल है। हम सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जिनका नजरिया मुख्तलिफ है, सबसे हम बैठ के अपने मसले अमन से हल करने के लिए तैयार हैं। चाहे वो बलूचिस्तान में लोग हों, चाहे हमारे पुराने कबायली इलाके के लोग हों। लेकिन कभी जिन लोगों ने करप्शन की है, यानी इक्तदार में आके मुल्क का पैसा चोरी किया, चोरी करके बाहर ले गए, मेरी हुकूमत इनसे कभी ना इनको NRO देगी, ना इनसे कभी मुफाहमत करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का मसला है। हमें इस मसले का इदराक है। आम आदमी के मसाइल को कम करने के लिए एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का आगाज किया गया है, जिससे मुल्क की आधी आबादी मुस्तफीद होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब के लिए हेल्थ कार्ड का इजरा 1 जनवरी से होगा। महंगाई पाकिस्तान का सिर्फ मसला नहीं, दुनिया का मसला है। लेकिन इंशाअल्लाह ये हमें सब नजर आ रहा है, 3 महीने 4 महीने के बाद सारी दुनिया में कीमतें नीचे आ जाएंगी। तो इस वक्त एक मुश्किल वक्त हमें भी और दुनिया को सामना करना पड़ रहा है। जिनकी आमदनी कम है, उन सबको हम आटा, घी और दालों के ऊपर 30% हम उनको सब्सिडी दे रहे हैं। हेल्थ कार्ड तो पंजाब के सारे खानदानों को मिलेगा। जनवरी से हेल्थ कार्ड मिलना शुरू होगा और मार्च तक सारे पंजाब के खानदानों को हम हेल्थ कार्ड देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि यकसा तरक्की के विजन पर अमल पैरा हैं। मियांवाली और भक्कर समेत जो इलाके पसमानदा रह गए, उनकी तरक्की पर तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने मियांवाली के अवाम से कहा कि वो बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें और इसमें भरपूर हिस्सा लें। मेरा आपसे वादा है कि ये वक्त साबित करेगा कि मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह इस मुल्क को उधर लेके जाऊंगा जिसके लिए ये पाकिस्तान बना था आज से 74 साल पहले। अपनी कौम को एक अजीम कौम बनाऊंगा। दुनिया में मिसाल बनेगी पाकिस्तान। कोई ताकत इस मुल्क को नहीं रोक सकती एक अजीम कौम बनने से। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब में 740 अरब रुपए के रिकॉर्ड तरक्याती बजट पर काम जारी है। नौजवानों के लिए 1 लाख नौकरियां, सूबे में यूनिवर्सिटियों का क़याम, स्कूलों की अपग्रेडेशन, इक्तसादी जोन्स और सनती शोबे का फरोग हमारी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत हैं। रुकने कौमी असम्बली अमजद अली खान ने कहा कि मियांवाली आज भी इमरान खान का है और आइंदा भी इमरान खान का होगा। यहाँ के अवाम अपने कायद से वालिहाना मोहब्बत करते हैं। डील या ढील के ख्वाहिशमंद नाकाम होंगे, उन्हें हिसाब देना होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़िला मियांवाली में 3 मनसूबों का इफ्तिताह, जबकि सेहत, तालीम और शाहराहों के 23 मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया है। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में देखिए।
वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक हुकूमत ने माजी में नज़रअंदाज किए जाने वाले इलाकों की तरक्की पर खसूसी तवज्जो दे रखी है। जनूबी पंजाब के लिए तरक्याती बजट का 33% मुख्तस करने के साथ सूबे के दीगर कम तरक्की याफ्ता इलाकों में तरक्की के नए मौक़े की फराहमी का सिलसिला भी जारी है। दौरे मियांवाली में वज़ीर आज़म ने शहर को सरगोदा से मिलाने वाली 2 रोया शाहराह के पहले मरहले के तामीराती मनसूबे का इफ्तिताह किया। 30 किलोमीटर पर मुश्तमिल 2 रोया शाहराह की तामीर पर 3 अरब 62 करोड़ रुपए लागत आई है। इमरान खान ने शहर में तामीर किए गए सिटी पार्क और नमल झील के करीब 15 एकड़ रकबे पर लगाए जाने वाले मियांवाकी जंगल का भी इफ्तिताह किया। ज़िले को बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि यहाँ पे लिंक रोड है, रावलपिंडी रोड, बखर, खुशाब रोड, ये पहले जाए बहुत से टूट फूट का शिकार हैं, बहुत सी परेशानी है यहाँ पे। इंशाल्लाह अब इनसे फ़ायदा भी होगा। इमरान खान वो लीडर हैं जिन्होंने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बोला एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के लीडर ही नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं। इधर बहुत बड़ा काम हो रहा है, इमरान खान ने बहुत बड़ा काम किया इधर आके। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल दिया है, उसकी हमें बहुत सहूलत होगी क्योंकि हमें पहले लाहौर या इस्लामाबाद जाना पड़ता था। ये जो मंसूबों का ऐलान किया है जनाब खान साहब ने, इंशाल्लाह मियांवाली बहुत तरक्की करेगा। हमारा पसमानदा ज़िला था और जो मंसूबे सी पैक का मंसूबा चल रहा है, अब इतनी आसानी पैदा हो रही है कि अभी हम मियांवाली से पिंडी 2 घंटे में रावलपिंडी चले पहुँच जाते हैं। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आवाम को होगा, हमें होगा। MM रोड उन्होंने शुरू किया, इससे मियांवाली की बहुत सारी मुश्किल हल हो जाएगी। टाइमिंग का इशू था बहुत ज़्यादा, जो 3 घंटे में जाना सफ़र था वो 6 घंटे में होता था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़िला मियांवाली में सेहत, तालीम और शाहराहों के 23 मनसूबों का संगे बुनियाद रखा। 36 अरब रुपए की लागत के इन मनसूबों में कालाबाग से शकरदरा तक सड़क की अपग्रेडेशन और बलकसर को मियांवाली के जरिए मुजफ्फरगढ़ से मिलाने वाली 415 किलोमीटर तवील शाहराह की बहाली अपग्रेडेशन के मनसूबे भी शामिल हैं। 1 साल में मुकम्मल होने वाले दोनों बड़े मनसूबों की तामीराती लागत का तखमीना 15 अरब रुपए से जायद है। नए शुरू होने वाले मनसूबों में ज़िले तरक्याती पैकेज के तहत रेस्क्यू 1122, आला तालीम, मकामी हुकूमत के दफातर और दीगर सरकारी इमारतों की तामीर व मुरम्मत की स्कीमें शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की अपग्रेडेशन पर 2 अरब रुपए लागत आएगी। मियांवाली में 5 अरब रुपए की लागत के 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल जच्चा बच्चा अस्पताल का जारी तरक्याती मनसूबा इसके अलावा है। मियांवाली जैसे दूर अफ्तादा इलाकों में तरक्याती मनसूबों के इजरा का बुनियादी मकसद सूबे के कम तरक्की याफ्ता इलाकों की पसमानदगी दूर करके उन्हें तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाना है। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मियांवाली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान करीबी रवाब्ता ज़रूरी है। अफगानिस्तान में इंसानी और माशी बहरान से बचने के लिए अफगान अवाम की फौरी मदद की जाए। इस्लामाबाद में अमरीकी सेनेट की 4 रुकनी वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी समेत खित्ते में सलामती के खतरात से निपटने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि RSS के इंतहा पसंदाना नज़रियात से मुतासरा BJP की पॉलिसीज़ खित्ते के अमन और सलामती के लिए ख़तरा हैं। अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करेगा। अगर भारत साजगार माहौल कायम करता है तो पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए इक़दाम उठाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हम अमरीका के साथ तवीलुल मुद्दत शराकतदारी को अहमियत देते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मईशत समेत तमाम शोबों में ताउन को वुसअत दी जानी चाहिए। वज़ीर आज़म ने तवक्को ज़ाहिर की कि अमरीकी सेनेटर्स के दौरे से बाहमी ताल्लुकात और अवामी सतह पर राब्ता मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत शराकतदारी खित्ते के अमन सलामती और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। अमरीकी सेनेटर्स के वफ़द ने अफगानिस्तान से अमरीकी शहरियों समेत दीगर मुल्कों के शहरियों के इनखला में मदद फराहम करने पर पाकिस्तान की खिदमत को सराहा। अमरीकी सेनेटर्स ने पाकिस्तान के साथ वसीउल बुनियाद और पायदार बाहमी ताल्लुकात के आज़म का इआदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आबादी और जुग़राफियाई अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए अमरीका और पाकिस्तान को तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी शोबे में ताउन को मजबूत बनाने के लिए मरबूत कोशिशें करनी चाहिए। वफ़द में शामिल 4 अमरीकी सेनेटर्स का ताल्लुक़ इंटेलिजेंस से मुतालिक सेनेट की सेलेक्ट कमेटी से है, जबकि सेनेटर एग्जिंग किंग अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के भी मेंबर हैं। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत के दौर में मजमूई मुल्की पैदावार 284 अरब डॉलर से बढ़कर 315 अरब डॉलर की सतह पर पहुँच गई है। रवा माली साल टेक्सटाइल की बरामदात में 30%, IT 39%, जबकि मजमूई बरामदात 27%, तरसीलात ज़र 12% और ज़र मुबादला के ज़खायर में 13% इजाफा हुआ। कारों, ट्रैक्टर समेत यूरिया, पेट्रोलियम मसनूआत और कॉटन की फ़रोख्त में इजाफा हुआ। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते कमी हो रही है।
हुकूमत ने रवा माली साल के इक्तिसादी आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। तफसील बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जामे और पायदार पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है। वज़ीर मुमलकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है, मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते कमी आई है। टमाटर की कीमत 13.37%, चिकन 10.59%, आलू 4.48%, LPG 2.96%, चीनी 1.03%, गुड़ 0.5%, आटा 0.46%, सरसों का तेल 0.27% और अंडों की कीमत में 0.26% कमी हुई है। हुकूमत के इंतजामी इक़दामात से गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में प्याज की कीमत में 31.99%, टमाटर 27.61%, दाल मूंग 25.03%, आलू 17.64%, चिकन 12.8% और अंडों की कीमत में 6.28% की कमी रिकॉर्ड की गई है। पार्लिमानी सेक्रेटरी सनत व पैदावार आलिया हमजा मलिक के मुताबिक रवा माली साल अब तक टेक्सटाइल बरामदात 30% इजाफे से 7 अरब 84 करोड़ डॉलर, IT मसनूआत 39% इजाफे से 83 करोड़ डॉलर, जबकि मजमूई बरामदात 27% इजाफे से 12 अरब 35 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई हैं। बड़ी सनतों के इंडेक्स में 5% इजाफा हुआ है। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र 12% इजाफे से 10 अरब 55 करोड़ डॉलर रहीं। रवा माली साल जुलाई से नवंबर तक 2314 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है। मुल्क में कारों की फरोख्त में 71%, ट्रैक्टर्स 14%, सीमेंट 1%, यूरिया 10%, पेट्रोलियम मसनूआत 22% और कॉटन की फरोख्त 54% बढ़ गई है, जो मुल्क में इक़्तिसादी सरगर्मियों में तेजी का वाज़ेह सबूत है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इत्तलात व नशरियात के वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि ग्रीन लाइन मंसूबे पर वफाक ने 35 अरब रुपए खर्च किए हैं, जबकि नून लीग ने सिर्फ कागजों में मंसूबे शुरू किए थे। कराची में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी कितने पानी में हैं वो कराची वाले बेहतर जानते हैं। हम ये चाहते हैं हमारे नए राइटर्स, नए पोइट्स हमारे जो हैं वो उभर के सामने आएँ और बहुत अच्छा काम हो रहा है उर्दू में। मैं आपको बताऊं, ये गलतफहमी है हमारी कि इस वक्त हमारे नए बच्चों में इतना शौक़ नहीं है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ को उठा करके देखेंगे, जो हमारे शायर हैं, जो हमारे लिखने वाले हैं, सारे यंगस्टर्स हैं और इन्हीं को ही इंशाअल्लाह ताला हमने प्रमोट करना है। फिल्म के लिए हमने PTV के अंदर एक PTV फिल्म्स बना दिया है। हम बाबर के ऊपर, टीपू सुल्तान के ऊपर बहुत बड़ी और महंगी फिल्म बनाने जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि उर्दू दुनिया की बोले जाने वाली चंद बड़ी ज़ुबानों में से है। जितना लिटरेचर और शायरी उर्दू ज़ुबान में है, इसका कोई मुकाबला नहीं। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि 25 दिसंबर को कराची में कायदे आज़म का यौम पैदाइश और क्रिसमस की तकरीब एक साथ मनाई जाएगी। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि नौजवान नस्ल को शिद्दत पसंदी से दूर रखने के लिए मुस्बत सरगर्मियाँ फराहम करना होंगी। इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स मेला और आर्ट्स काउंसिल की जानिब से कराची में उर्दू कॉन्फ्रेंस मुस्बत इक़दामात हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को भी मजबूत कर रहे हैं। PTV फिल्म बना दिया है। जदीद फिल्म साजी के लिए टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। इसके अलावा टीपू सुल्तान और ज़हीरुद्दीन बाबर पर महंगी फिल्में बनाई जा रही हैं। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि कोरोना के बायस दुनिया भर में निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ। सेहत के शोबे पर शदीद दबाव आया और बड़े मुल्कों की सेहत का निज़ाम मफलूज हो गया। ताहम पाकिस्तान में कोरोना से बेहतरीन अंदाज में निपटा गया और दुनिया हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात की मोतरफ़ है। फैसलाबाद में मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत इत्तलात ने कहा कि डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने कोरोना के दौरान दूसरों को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगियाँ दांव पर लगाईं, जिस पर इन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की सारी आबादी को हेल्थ कार्ड के जरिए सेहत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जबकि पंजाब में भी हर ख़ानदान को हेल्थ कार्ड की सहूलत फराहम करने जा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने इस मौके पर फैसलाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल कॉलेज बनाने का भी ऐलान किया। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अज़ला में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हैं। मकामी हुकूमतों के इलेक्शन में हिस्सा लेने वालों की हतमी फहरिस्तें जारी कर दी गई हैं। मुद्दस्सिर खान की रिपोर्ट देखते हैं। सूबे के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कुल 37,752 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहसील चेयरमैनशिप और सिटी मेयर्स के लिए मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवारों समेत मजमूई तौर पर 689 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। विलेज और नेबरहुड कौंसल्स के लिए सियासी जमातों के उम्मीदवारों समेत
19,282 उम्मीदवारों के दरमियान टाकरा होगा। हतमी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ख़वातीन नशिस्तों पर 3,905, मजदूर किसान के लिए 7,513, नौजवानों की नशिस्तों के लिए 6,081 और अक़लियती नशिस्तों पर 282 उम्मीदवार आमने सामने हैं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान को इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए हैं। सूबे के जिन 17 अजला में 19 दिसंबर को पोलिंग होगी, इनमें सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा, खैबर, मोहम्मद, मर्दान, सवाबी, बुनेर, बाजावड़, हरीपुर, कोहाट, करक, हंगू, बनो, लकी मरवत, डी.आई. खान और टांग शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ANP की बड़ी विकेट उड़ा ली। बलोर खानदान के सियासी वारिस गजनफर बलोर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से मुलाकात में गजनफर बलोर ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। गजनफर बलोर ANP के रहनुमा इलियास बलोर के साहिबजादे और साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम अहमद बलोर के भतीजे हैं। गजनफर बलोर पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के सरकर्दा रहनुमा और सरहद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर रह चुके हैं। 5 दहाइयों में बलोर ख़ानदान के किसी अहम अफराद ने पहली मरतबा ANP छोड़ी है। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात से कबल ANP के अहम रहनुमा की PTI में शमूलियत गेम चेंजर है। आलमी बैंक ने अफगान अवाम की मदद के लिए 28 करोड़ डॉलर्स जारी करने का ऐलान किया है। आलमी बैंक की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि ये इमदादी रकम अफगानिस्तान के अवाम के लिए बैनुल-अक़वामी डोनर्स की जानिब से दी जाएगी। आलमी बैंक के मुताबिक अफगानिस्तान की तामीर नौ ट्रस्ट फंड की तरफ से ये इमदादी रकम यूनिसेफ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दी जाएगी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ये फंड्स मौजूदा प्रोग्राम्स में मालियाती खला को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि सेहत और ग़िज़ाइयत की खदमात बराह रास्त अफगान अवाम तक पहुँचाई जा सकें। अफगानिस्तान में जारी सूरत हाल के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा ने बारहा खबरदार किया है कि दुनिया के बदतरीन इंसानी बहरान के दहाने पर है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तकरीबन आधे से ज़्यादा अफगान अवाम को सर्दियों के महीनों में खुराक की शदीद कमी का सामना है, जिससे लाखों लोग नकल मकानी और फाका कशी पर मजबूर हो सकते हैं। यूरोपीय यूनियन के रुकन 15 ममालिक 40,000 अफगान महाजरीन को कबूल करेंगे। ये फैसला ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के इंसाफ और दाखिला उमूर के वज़रा के इजलास में किया गया। मीडिया ब्रीफिंग में यूरोपीय यूनियन की हाई कमिश्नर बराए उमूर दाखिला येल्वा जोहान्स ने कहा कि ये फैसला नहायत मुतासिरकुन और बाहमी इत्तेहाद की एक मिसाल है। ये इक़दाम गैर मुनज़्ज़म नकल मकानी की रोकथाम में बहुत मुआवन साबित होगा। उन्होंने कहा कि आइंदा साल के आगाज़ से यूरोपीय यूनियन काउंसिल की टर्म चेयरमैनशिप सिल्वेनिया से फ्रांस को मुंतकिल हो जाएगी। फ्रांस मज़कूरा मैकेनिज़्म को ज़ेरे अमल लाने के मामले में पुरजोश है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने बैनुल मज़ाहिब और बैनुल सकाफ़त मुकालमे को फ़रोग़ देने के बारे में पाकिस्तान और फ़िलिपाइन की पेश करदा करारदाद को मंजूर कर लिया है, जिसमें मुक़द्दस मजहबी मकामात के एहतराम की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। करारदाद में मुल्कों पर जोर दिया गया है कि तालीमी प्रोग्राम्स के ज़रिए मजहबी रवादारी की अक़दार और बैनुल मज़ाहिब मुकालमे को फ़रोग़ दिया जाए। करारदाद में दुनिया भर की सिख बिरादरी के लिए करतारपुर राहदारी खोलने के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान समझौते को भी सराहा गया। करारदाद पर रायशुमारी से पहले जनरल असम्बली में खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मोहम्मद आमिर खान ने मुकालमे और मुफाहमत के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया। भारत में सिखों के आज़ाद वतन खालिस्तान के लिए रेफरेंडम का छठा मरहला जिनीवा में हुआ। जिनीवा में शदीद बर्फबारी के बावजूद बड़ी तादाद में सिखों ने रेफरेंडम में हिस्सा लिया। खालिस्तान रेफरेंडम आइंदा दिनों में अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय पंजाब में भी मुनक्किद किए जाएंगे। रेफरेंडम के नताइज अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी इदारों को भी पेश किए जाएंगे ताकि भारत में सिखों के अलहदा वतन के लिए वसी तर इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जा सके। खालिस्तान रेफरेंडम के इब्तदाई मराहिल में सिखों की बड़े पैमाने पर शिरकत ने भारत को बौखलाहट का शिकार कर दिया है। बीजेपी की क़यादत में भारतीय हुकूमत ने बरतानिया में खालिस्तान रेफरेंडम को रुकवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन बरतानवी हुकूमत ने सिखों को रेफरेंडम के इनेकाद से नहीं रोका। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सफ़र की मयारी सहूलियात पहुँचाना हुकूमत का वो इम्तहान रहा जिसमें BRT पूरी तरह कामयाब ठहरी, और ये एतराफ़ कोई और नहीं बल्कि आलमी इदारे भी कर रहे हैं, जिसने मैस ट्रांसपोर्ट की फहरिस्त में तहरीक इंसाफ दौर के मंसूबे बस रैपिड सर्विस को शामिल किया है। रिपोर्ट करेंगे गाफिर अली शाह। योमिया 2 लाख मुसाफिरों को सफ़र की सहूलत फराम करने वाला BRT मनसूबा इस वक्त पेशावर शहर में मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम का वो चेहरा है जिसको न सिर्फ सूबा बल्कि अब आलमी सतह पर भी मकबूलियत मिल चुकी है।
भारत, अमेरिका, रूस समेत 31 ममालिक की दर्जाबंदी में ट्रांसपोर्ट के इस शोबे में BRT मंसूबे की पाकिस्तान से नामजदगी मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र भी है। मैं BRT से अपने कॉलेज के लिए जाती हूँ। यहाँ पे पूरा सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी वजह से हमारे बहुत से मुश्किलात हल हो गई। अब मतलब कि टाइम एक तो बचता है, किसी भी स्टाफ से बैठे हैं 10-15 मिनट के फासले पर कॉलेज आ जाते हैं, 20-30 रुपए में हमारा इतना काम हो जाता है। आवाम का कहना है कि बस रैपिड ट्रांसपोर्ट के इस जदीद निज़ाम से इनकी सफरी मुश्किलात कम हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर में इस मंसूबे ने शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। सबसे अवलीन चीज़ जो है मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि मैं KP गवर्नमेंट की सच्चे दिल से और दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी सहूलत मुहैया की है हमारे लिए, तो काफ़ी प्रोटेक्टेड है, ख़ास करके औरतों के लिए। दरख्वास्त है हमारी गवर्नमेंट से कि वो ऐसे अच्छे और मंसूबे बनाए और हमारे मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न करे। बड़े पैमाने पर शहरियों को सफर की सहूलत मिलने पर पेशावर में एक तरफ ट्रैफिक का दबाव कम हुआ है तो वहीं पर खवातीन और बुजुर्गों के लिए सहूलत पैदा हो गई है। सफरी सहूलियात में बेहतरीनी के साथ BRT पेशावर जदीद तरीन ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम लाई है, जो कि इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के पिछले 70 सालों में नजर नहीं आई, जिसका एतराफ़ आलमी इदारे भी कर रहे हैं। सैयद गाफिर अली शाह, PTV न्यूज़, पेशावर। सनत और हरफत के बारे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी खादिम अब्दुल करीम खान ने कहा है कि बीमार सनतों की बहाली उनकी हुकूमत की तरजीह है। पाकिस्तान टेलीविजन से गुफ्तगू में उनका कहना था कि कारोबार की तरक्की के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। फर्स्ट टाइम KP गवर्नमेंट ने अपने डिपार्टमेंट से मुख्तलिफ NOCs, मुख्तलिफ हर्डल्स और हमने सारा फोकस ईज़ ऑफ डूइंग पे दिया है कि जो डुप्लिकेशन इस वक्त मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में है उसको दूर किया जाए और तमाम डिपार्टमेंट को इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए फैसिलिटेटिव रोल के लिए तैयार किया जाए। और इस बाकी जो 71 साल और जो कि हमारे दूसरी पार्टियों का गुजरा है, KP में सबसे बड़ा फुकदान जो था वो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का था। 4 इकनॉमिक जोन हमारे पास थे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे हैं कोई 12 मज़ीद इकनॉमिक जोन पे हम काम कर रहे हैं। 5 तो ऑलमोस्ट मुख्तलिफ पोजीशन में हैं लोगों ने। अभी मैं ममून का मिसाल दूंगा कि वहाँ पे इंडस्ट्री भी चल पड़ी है। इसके साथ साथ पहली दफ़ा हुकूमत ने अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज जो चीज़ें हमारे पास हैं, मार्बल एंड मिनरल इंडस्ट्री स्टेट मुमंद है, इस तरह बुनेर में मार्बल एंड मिनरल इकनॉमिक जोन फॉर बुनेर, जिप्सम एंड साल्ट सिटी फॉर करक, एंड अभी हमारी फिजिबिलिटी जा रही है मानसेरा के लिए ग्रेनाइट एंड मिनरल सिटी। और दूसरी ये कि हमने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को टारगेट दिया है कि जो ट्रांजिट ट्रेड में बाहर से इंपोर्ट होता है और फिर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया एक्सपोर्ट हो रहा है, इसको स्टडी करके इसके लिए अपने लोकल जो हमारे इन्वेस्टर है उनको तैयार किया जाए। दूसरी ये कि हमारा मार्केट जो है ना वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया है, तो हम वहाँ से जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सकती है तो ख़ास करके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, तो इस 2 चीज़ों को हमने फोकस किया है। सारे डिपार्टमेंट को हमने ऑनलाइन कर दिया है, ख्वाह वो फॉर्म रजिस्ट्रेशन है, ख्वाह हमारे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ख्वाह हमारे KP इकनॉमिक जोन है, ताकि लोग घर बैठ के आपसे इंटरेक्शन कर सकें और जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए। और सूबे की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसमें 2 करोड़ रुपए तक हम इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे खैबर पख्तूनख्वा, उसको 6% जो है इसको वो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट डालेगी। और इंशाल्लाह अपने जो अवाम है, अपने जो SME सेक्टर है उनको हम सपोर्ट करेंगे ताकि 2-2 करोड़ रुपए मुख्तलिफ सेक्टर में वो लेके तो इकॉनमी को भी बूस्ट करें और अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम करें। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद इंसानी ज़िंदगी, खुराक और पानी की फराहमी में पहाड़ों के किरदार की अहमियत से मुतालिक शऊर को पैदा करना है। इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वज़ीर सियाहत गिलगित बल्तिस्तान राजा नासिर खान। उनसे कुछ बात कर लेते हैं इस हवाले से। सर, बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान ये वो इलाका है जो पहाड़ों और कुदरती हुस्न से माला माल है। वज़ीर आज़म इमरान खान का हमेशा से विजन रहा है कि सियाहत को फ़रोग़ देना, इस हवाले से जो है वो क्या इक़दाम लिए जा रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। देखें जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। आज माउंटेन डे के हवाले से देखें, गिलगित बल्तिस्तान वाकई में इंतहाई खुश नसीब इलाकों में से एक इलाका है जहाँ पे
8,000 मीटर से ऊंचे 5 पहाड़ इस वक्त हमारे गिलगित बल्तिस्तान में हैं। तकरीबन 170 के करीब 7,000 मीटर से ऊंचे पहाड़ गिलगित बल्तिस्तान में हैं। तकरीबन 4,550 से ऊंचे 6,000 मीटर से ऊंचे जो पहाड़ है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में है। कुदरती वसाइल से मालामाल ये इलाका है और पहाड़ों की जो सियाहत है इस इलाके की सबसे एक फेमस इस इलाके की जो अपॉर्चुनिटी है, जो खूबसूरती है, पूरी दुनिया में मशहूर है अल्लाह के लाख लाख फजल करम से। और इस दफ़ा पहली दफ़ा PTI हुकूमत ने जो फोकस किया है गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जो कि पहाड़ी जो एडवेंचर टूरिज्म है उसकी प्रमोशन के लिए इस दफ़ा पहली दफ़ा हमने 2 रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इस इलाके में कायम करने जा रहे हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे लोगों में जो ट्रेन्स लड़के जो हाई एटीट्यूड पॉडर्स ना होने की वजह से हम मुख्तलिफ दूसरे ममालिक के खदमात ले रहे थे, उसको हमने फोकस किया हमारे गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के फ्यूचर के लिए। और दूसरी बात जो हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वो सस्टेनेबल माउंटेनियरिंग टूरिज्म है। उसके ऊपर इको टूरिज्म का इशू है जो हमारे पास सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग इशू है। और ये ग्लेशियर्स, ये पहाड़, अगर ये इनकी हिफाजत करना हम सबके ऊपर फर्ज है। हम हुकूमत वक्त गिलगित बल्तिस्तान इसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो ये आने वाले वक्तों में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए सबसे बड़ी एक इंडस्ट्री साबित हो सकता है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए माउंटेनियरिंग टूरिज्म सबसे एक बहुत ही अहम चीज़ है जो कि हम अगर सही तरह मानों में अगर फैसिलिटेट करके प्रमोट करें तो पाकिस्तान की टूरिज्म राजा नासिर अली खान, आपने आज के दिन एक जो इवेंट हुआ है उसमें आपने भी क्लाइंबिंग की है नौजवानों के साथ, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? साथ ही साथ जब हम पहाड़ों की सयाहत की बात करते हैं तो फिर नेचर को सेफ रखना, प्रोटेक्ट रखना, ये भी जिम्मेदारी में शामिल हो जाता है ताकि हम नेचर को उसके अपनी हालत में बरकरार रख सकें। इसके लिए क्या इकदाम हो रहे हैं? जी देखिए, मैं खुद इस चीज़ से बड़ा पैशनेट हूँ। मैं खुद बड़ा दिलचस्पी रखता हूँ या टूरिज्म के अंदर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, क्योंकि हमारे यूथ में क्योंकि यूथ मिनिस्ट्री को भी मैं देख रहा हूँ तो मैं अपनी यूथ को प्रमोट करना चाहता हूँ, अवेयरनेस पैदा करना चाहता हूँ। इसलिए इस तरह की एक्टिविटीज़ में हमें खुद इसमें जो है ना हिस्सा लेने की ज़रूरत है। लोगों को आगाह करने के लिए, शऊर देने के लिए हमें और वो प्लेटफॉर्म्स मुहैया करने की ज़रूरत है कि हमारे मुस्तकबिल को हम कैसे प्रमोट करें। और दूसरी बात जो हमारे हुकूमत की जो सबसे बड़ी फोकस इस वक्त टूरिज्म के ऊपर है गिलगित बल्तिस्तान के, और आज वर्ल्ड माउंटेन डे के मौके पर सिर्फ यही मैसेज था कि हमने एक फिल्म फेस्टिवल गिलगित में करवाया जिसमें बेहतरीन माउंटेन्स के ऊपर जो मूवीज़ बनी है उनको हमने टॉप 10 को सिलेक्ट किया है। इनको अवार्ड भी तकसीमात भी होंगे और हम अपने इलाके की प्रमोशन के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह हमें कहीं पे भी मौका मिलता है, हम उस जहाँ पे भी हमें मौका मिलेगा हम अपने गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात करके हम कोशिश करेंगे। PTI हुकूमत से हमें काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है, खुसूसन इमरान खान साहब के से जो कि इस इलाके को काफ़ी फोकस किया हुआ है टूरिज्म से रिलेटेड किसी भी एडवांटेज जो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ है उसको फैसिलिटेट करने के लिए। काफ़ी हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट का भी इंशाल्लाह इस दफ़ा हम कायम करने जा रहे हैं जो कि एक हमारे गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए काफ़ी कारआमद साबित होगा। और मेरा मैसेज यही है आज के दिन के हवाले से कि इन पहाड़ों की हिफाजत करना हम सब के ऊपर फर्ज है, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नहीं, हम सबका फर्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर सियाहत गिलगित बल्तिस्तान राजा नासिर खान हमारे साथ मौजूद थे। आपने PTV न्यूज़ को अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद इंसानी ज़िंदगी, खुराक और पानी की फराहमी में पहाड़ों के किरदार की अहमियत से मुतालिक शऊर उजागर करना है। तफसील मोहम्मद यूनुस से। हर साल 11 दिसंबर को दुनिया भर में पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जाता है। दुनिया भर में 23% रकबे पर पहाड़ हैं। पाकिस्तान भी कुदरती हुस्न से मालामाल है। यहाँ दुनिया के 3 अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिले कराक्रम, हिमालय और हिंदुकुश मौजूद हैं। दुनिया की 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियों में से 5 पाकिस्तान में हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इन पहाड़ों में केटू, ब्रॉड पीक, गिशरब्रूम 1, गिशरब्रूम 2 और नंगा पर्वत शामिल हैं। दुनिया भर के कोहपेमा इन चोटियों को सर करने के लिए पाकिस्तान का रुख करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए गिलगित बल्तिस्तान को और पूरे पाकिस्तान को, माउंटेन क्लाइंबिंग को, स्कीइंग को, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पोटेंशियल है। वहाँ पे ऐसे जगह हैं जहाँ पे हम कर सकते हैं, इवन विंटर टूरिज़्म भी।
इस दिन के हवाले से इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज के ज़ेर एहतमाम तकरीब का एहतमाम किया गया। मुकर्रीन का कहना था कि पहाड़ों के नाजुक माहौलियाती निज़ाम के बारे में शऊर उजागर करने की जरूरत है। मुकर्रीन ने कहा, मौसमियाती तब्दीली पहाड़ी माहौलियाती निज़ाम को मुतासिर कर रही है, जिससे ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार तेज हो रही है। ग्लेशियल मेल्ट के बारे में सब आगाह हैं, उसके जो ख़तरात हैं उनसे भी आगाही आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। इस साल की जो थीम है वो है सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज़्म की, जिसके तहत हम सिर्फ टूरिज़्म को ही नहीं, इको टूरिज़्म को, कंजर्वेशन को और ग्लोफ के इवेंट्स की जो वजह से जो तबाही आती है उसको एड्रेस और अवेयरनेस के लिए हमने ये इवेंट मुनक्किद किया था। उन्होंने पायदार तरक्की को यकीनी बनाने और कुदरती आफात से बचने के लिए फितरत और माहौलियात के साथ हम आहंग इंसानी ताल्लुकात को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। मोहम्मद यूनुस, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मज़ीद खबरें शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। क्या गुफ्तगू के आदाब को टीवी टॉक शोज और मिड ब्रेक्स बेहतर या बदतर कर रहे हैं? देख कर बताइए। आज के हालात हाजरा पर माजी के कल और मुस्तकबिल का कल का उतना ही या ज्यादा असर होता है? आप जांच कर बताइए। मुकालमा होगा, गुफ्तगू होगी, शोर नहीं, हंगामा नहीं, ब्लेम गेम नहीं, बातचीत जिम्मेदारी के साथ। देखिए जावेद जब्बार और हुमा बकाई के साथ मुकालमा हर हफ्ता और इतवार रात 10:05 सिर्फ PTV न्यूज पर। पाकिस्तान की दास्तान, इसके लिए की गई जिद्दोजहद और इसका हुसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस तरह अजीम मुश्किलात से नबुर्द आसमां हुआ जाता है। नाज़रीन, पहाड़ों के आलमी दिन के हवाले से बात कर रहे थे हम ब्रेक से पहले, और पहाड़ों के आलमी दिन के मौके पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी होती हैं, इवेंट्स भी होते हैं। बल्तिस्तान डिवीज़न में भी ये दिन मनाया जा रहा है। स्कर्दू में महकमा सयाहत और बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के शोबा सयाहत के ज़ेर एहतमाम खरपोचों की पहाड़ी पर क्लाइंबिंग का मुजाहरा किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के तलबा और दीगर लोगों ने भी शिरकत की। इस पर आपको बताते चलें कि मुबारक हसन को पैमा आप हमारे साथ मौजूद हैं। मुबारक हुसैन को पैमाई करते हैं, हुंजा से आपका ताल्लुक है, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। मुबारक हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। आज कैसी खुशी महसूस हो रही है? पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अल्लाह ताला का हमारे लिए लाख लाख शुक्र है। हम ऐसे मुल्क में हम यहाँ रहते हैं जहाँ पे पहाड़ों का एक पूरी दुनिया वाले समझते हैं कि पाकिस्तान एक पैराडाइज है पहाड़ों का। तो यहाँ पे हमारे पास अल्लाह का शुक्र है 5-8 हज़ार मीटर बुलंद पहाड़ है पाकिस्तान में, और K2 8,611 मीटर, ब्रॉड पीक 8,047 मीटर, गाशापुरम 2 8,035 मीटर और गाशापुरम 8,068 मीटर, ये कराकोरम में हमारे। और हमारे वेस्टर्न हिमालय में हमारे पास नंगा पर्वत 8,125 मीटर। उसके अलावा हिंदू कुश का सबसे ऊंचा जो पहाड़ है 7,000 तिरिचमीर, तो हमारे पास सबसे बड़ा ऊंचे पहाड़ है हमारे मुल्क में। और मेरी पूरी जिंदगी में मैं 35 साल तक पहाड़ों पे मैंने ट्रेकिंग भी की है, क्लाइंबिंग की है। और सबसे खूबसूरत जो जगह है वो बल्तिस्तान का इलाका बल्तोरो ग्लेशियर, जो कि 36 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। यहाँ पे हर माउंटेन क्लाइंबिंग के हर जो क्लाइंबर के लिए उनके लिए मौके मौजूद है वहाँ क्लाइंबिंग करने के लिए। सही। अच्छा, कितनी चोटियां अभी तक आपने कुल मिला के सर की है और मुस्तकबिल में जो है वो इस हवाले से क्या इरादा है आपका? ये मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे पूछ रहे हैं।
जी वो मैं देखे मैं ज़्यादातर मैं इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ कराकोरम एक्सप्लोरर्स का। मैं तकरीबन कोई 54 टाइम्स K2 पे गया हूँ, लेकिन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। मैं कोई 7,000 से नीचे तक 3 दफ़ा मैंने अटेम्प्ट किया, मैं सबमिट नहीं कर सका। लेकिन मैं तकरीबन कोई 54 टाइम्स मैंने अटेम्प्ट किए हैं ट्रैकिंग्स के साथ। और मैं तिरिचमीर गया हूँ, नंगा पर्वत पे गया हूँ, रकापोशी पे गया हूँ, और दीरान 1, दीरान 2 और हरामोश पीक यहाँ पे मैं गया हूँ। तो अभी तक मैंने जो सर किया है वो दीरान 2 मैंने सर किया है अभी तक। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुबारक हुसैन, आप हमारे साथ मौजूद रहे टेलीफोन लाइन पर और पहाड़ों के आलमी दिन के हवाले से आप बात कर रहे थे, माउंटेनिंग के हवाले से और पहाड़ों से मोहब्बत आपकी वाज़ेह है कि आप मुख्तलिफ पहाड़ों पर गए हैं, आपने कोपैमाई की है, लेकिन आपने समिट नहीं किया। ये भी एक अलग से जिस तरह से हम कह सकते हैं कि मोहब्बत का इजहार है कि आपने अपनी मंजिल को हासिल करने की कोशिश नहीं की, आप सफ़र पर ही रहे। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल नाज़रीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पहाड़ों का आलमी दिन बल्तिस्तान डिवीज़न में भी मनाया जा रहा है। स्कर्दू में महकमा सियाहत और बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी शोबा सियाहत के ज़रिए एहतमाम खरपोचू की पहाड़ी पर क्लाइंबिंग का मुजाहरा किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के तलबा और दीगर लोगों ने शिरकत की। वज़ीर सेहत गिलगित बल्तिस्तान राजा नासिर अली खान भी क्लाइंबिंग करने वालों में शामिल थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहाड़ न सिर्फ इलाके में सियाहत और कोपैमाई को फ़रोग़ देते हैं, बल्कि ये मादरियात, जंगली हयात और नायाब जड़ी बूटियों का भी मस्कन है। उन्होंने बताया कि इलाके में कोपैमाई के फ़रोग़ के लिए क्लाइंबिंग इंस्टीट्यूट कायम किया जा रहा है। और पहाड़ों के आलमी दिन के हवाले से इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में सदर IRS एम्बेसडर नदीम रियाज ने कहा कि पहाड़ों के नाजुक माहौलियाती निज़ाम के बारे में शऊर उजागर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस साल दिन का मौसू पहाड़ों में सियाहत की पायदार तरक्की है। दीगर मुकर्रिरीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीली पहाड़ी माहौलियाती निज़ाम को मुतासर कर रही है, जिससे ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार तेज़ हो रही है और साथ ही बर्फबारी भी कम हो रही है। उन्होंने पायदार तरक्की को यकीनी बनाने और कुदरती आफात से बचने के लिए फितरत और माहौलियात के साथ हमआहंग इंसानी ताल्लुकात को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। बर सग़ीर के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम के 708वें उर्स के दूसरे दिन भी हज़ारों अकीदतमंदों ने मज़ार पर हाज़री दी और फातिहा ख़वानी की। सज्जादा नशीन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने शाह रुकन आलम कॉन्फ्रेंस की सदारत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उलमा इकराम ने कहा कि खित्ते में इस्लाम की तबलीग और इशाअत के लिए शाह रुकन आलम की खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। उन्होंने कहा कि मुआशरे में अमन व अमान के फ़रोग़ और खुशहाली के लिए सूफ़िया इकराम की तालीमात मशअल राह हैं। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया गया। सज्जादा नशीन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्क की सलामती और खुशहाली और उम्मा की सरबलंदी के लिए दुआ कराई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने रेस्क्यू 1122 मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया। रेस्क्यू 1122 मोबाइल एप्लीकेशन से इमरजेंसीज़ को बर वक्त रिस्पॉन्स करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर में कंप्यूटर का बटन दबाकर एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब के शहरियों को उनकी दहलीज पर इमरजेंसी सर्विस की फौरी फराहमी के लिए ये एप्लीकेशन कलीदी किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब के दूर दराज के इलाकों में रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस जल्द शुरू कर दी जाएगी और पंजाब जनूबी एशिया का पहला सूबा होगा जहां से एयर एम्बुलेंस का आगाज़ होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू सर्विस का दायराकार बाकी 27 अजला तक बढ़ाया जा रहा है। ये ऐप न सिर्फ गैर ज़रूरी कॉल्स को ख़त्म करेगी बल्कि इमरजेंसी सर्विसेज के मयार को भी बेहतर बनाएगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पंजाब लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए हैं। इस तरह नए बल्दियाती निज़ाम के निफाज का हतमी अमल मुकम्मल हो गया है। पंजाब लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस के तहत सूबे में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर बराह रास्त होंगे। मेट्रोपॉलिटन के मेयर्स और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के डिस्ट्रिक्ट मेयर्स का इंतखाब बराह रास्त होगा। पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और लाहौर में सिर्फ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होगी। पंजाब के 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अलावा गुजरात और सियालकोट को मेट्रोपॉलिटन का दर्जा हासिल होगा। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम अवाम के हकीकी मानों में बाइख्तियार बनाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करने का वादा पूरा कर रहे हैं। डेरा गाजी खान में कौमी पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। माहौलियाती तब्दीली की वज़ीर ममलकत सरताज कुल वज़ीर और सूबाई मुशीर सेहत मोहम्मद हनीफ फताफी ने खाना बदोश बस्ती में जाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। मुहिम के दौरान पोलियो वैक्सीनेशन के साथ कोरोना की वैक्सीनेशन भी की जाएगी। इस मौके पर वज़ीर ममलकत सरताज कुल वज़ीर ने कहा कि पंजाब में इस साल पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, ताहम पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए वालिदैन का ताउन ज़रूरी है।
वज़ीर आला पंजाब के मुशीर सेहत मोहम्मद हनीफ फताफी ने कहा कि पंजाब में 2 करोड़ से ज़ायद बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन की जाएगी। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान इशा का वक्त हुआ चाहता है। आइए सुनने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, मजहबी उमूर के बारे में वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि सानह सियालकोट में मुलव्वस मुल्ज़िमान ने इस्लाम को नुकसान पहुँचाया, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। लाहौर के कैथेड्रल चर्च में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उलमा बोर्ड और दीगर जमातें इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खात्मे में मुस्बत किरदार अदा कर रही हैं। हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान यहाँ बसने वाले हर एक का अपना मुल्क है, यहाँ बसने वाली तमाम अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। दीन इस्लाम तो सलामती का दीन है, अमन का दीन है, रवादारी का दीन है। पाकिस्तान में हर वो शहरी जो पाकिस्तान के आयन और कानून के तहत रहता है, उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की भी जिम्मेदारी है और बतौर मुसलमान अक्सरियत के हैं, बड़ा भाई होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है।
सानहा सियालकोट के मुल्ज़िमान को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए प्रोसिक्यूशन की खुसूसी टीम और आला पुलिस हुक्काम का इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि अमन अमान की सूरत हाल के बायस सानहा सियालकोट के मुल्ज़िमान का ट्रायल जेल में ही कराया जाएगा। इस सिलसिले में मुतल्लिका जेल इंतजामिया को जेल में इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इजलास में प्रोसिक्यूशन की खुसूसी टीम ने पुलिस हुक्काम को जल्द अज जल्द चालान मुकम्मल करके अदालत में जमा कराने की हिदायत भी की है। इत्तलात के बारे में वज़ीर आला पंजाब के मावने खुसूसी अहसान खावर ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि CPN से मुलाकात में अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। मीडिया में इस्लाहात और इश्तिहारात की तशहीर के लिए कमेटियाँ कायम की गई हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बेहतरीन है। माजी में एक ख़ानदान के लोग एक मेज़ पर बैठकर कौम के फैसले करते थे, जबकि अब तमाम वज़रा बा इख्तियार हैं। हसन खावर ने कहा कि महंगाई कम करने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। तेल की कीमत जैसे ही नीचे आएगी, बिजली की कीमत कम हो जाएगी। नाज़ेबा वीडियो स्कैंडल में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। मुबैना वीडियो स्कैंडल के खिलाफ कोयटा के शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरों और मज़म्मतों का सिलसिला जारी है। कोयटा वीडियो स्कैंडल #टॉप ट्रेंड बन गया है। तफसील के लिए कोयटा से वक़ार अहमद की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। ख़वातीन के हकूक़, तहफ़्फ़ुज़ और किरदार के हवाले से 16 रोज़ा मुहिम तो ख़त्म हो गई। गुज़िश्ता 30 सालों से दुनिया भर में विमेन एक्टिविज्म के हवाले से दिन मनाया जाता है। वॉक्स, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स का एहतमाम तो किया जाता है, लेकिन उसके बरखिलाफ क्राइम अगेंस्ट विमेन के वाक़यात हैं कि कम ही नहीं होने में आते। और आज एक और हिदायत से आरी इंसान की वजह से कोयटा के शहरी और सिविल सोसाइटी कोयटा प्रेस क्लब पर जमा है। हमारा मुतालबा ये है कि एक फेयर ट्रायल हो इस शख्स का और इसके खिलाफ जितने चार्जेस हैं वो अदालत में साबित किए जाए। मुजरिम को कैफर किरदार तक पहुंचा दिया जाए। जो खवातीन जो किडनैप किया गया है उनको बाजियाब कराया जाए। ये सिर्फ एक हिदायतुल्लाह नहीं है। एवरी स्ट्रीट इज हैविंग हिदायतुल्लाह लाइक हिम। He is not even human. फांसी दो। मेन स्ट्रीम मीडिया पर आने वाले मुबैना वीडियो स्कैंडल ने माशरे को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया पर वाक़े का #टॉप ट्रेंड बन गया है। मुल्ज़िमान पुलिस हिरासत में है। यकीन है कि प्रोसिक्यूशन में कमी नहीं छोड़ी जाएगी। अवाम का मुतालबा मुल्ज़िमान को निशाने इबरत बना देना है कि आइंदा इस तरह के वाक़यात रूनुमा न हो। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। पेशावर में रिवायती तौर पर छोटे गोश्त से शकम सेरी करना आम है। सर्दी के मौसम में मटन कड़ाही के साथ करेजी का बारबेक्यू भी यहाँ बनता है, जो खुश खुराक अफराद के लिए बेहद मरगूब है। अमजद अली खान की रिपोर्ट देखिए। पेशावर में कारखानों मार्केट से कौन वाकिफ़ नहीं होगा। ख़रीदारी के लिए आने वाले जब खाने के लिए बैठे तो करीब ही मटन कढ़ाई मिल जाती है। इन दुकानों पर रिवायती अंदाज में जो लजीज बारबेक्यू बनता है, इनमें पट्टे तिक्के या चर्बी में लिपटी कलाजी का अपना मज़ा है। ये खैबर पख्तूनख्वा का जो है रिवायती खाना है और यहाँ बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। और मैं स्पेशल ये भी कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए, लोगों को कह रहा हूँ कि आप यहाँ आए, यहाँ से लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। भड़कते कोयलों पर नमक छिड़क कर चर्बी से बंद छोटी कलाजी रखी जाती है तो इसकी खुशबू 400 फैल जाती है। अवाम का कहना है कि चर्बी में बने खाने सर्दी से महफूज रखने का सबब है। ये जब भी हम पेशावर आते हैं तो इनका ये रिवायती ये खुराक है जी, और बहुत ज़बरदस्त। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, ख़ासकर पंजाब की जितनी भी पंजाब के हमारे भाई हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। रिवायती खाना है इधर, ये छोटा गोश्त इधर मिलता है तो हम इधर ये खाने के लिए आए। दूर दूर से लोग, पंजाब से भी लोग आते हैं, सिंध से भी लोग आते हैं, यहाँ ये खाते हैं। यहाँ ताज़ा और फ्रेश गोश्त मिलता है और ये आपकी मर्ज़ी से ये लोग पकाते हैं। मकामी ज़ुबान में इन्हें पटे तिक्के कहा जाता है। पेशावर से करीब होने की वजह से दरे खैबर के अफरीदी व शनवारी कबाइल की पसंदीदा खुराक है, जो आज पेशावर में अपना घर कर चुकी है। अमजद अली खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर F6 में सड़क के दरमियान जगमगाता क्रिसमस ट्री शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। ये ट्री इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। मरियम मलिक रिपोर्ट कर रही हैं।
25 दिसंबर क्रिसमस का त्यौहार, मसीही बरादरी के लिए बड़ा दिन। मुल्क भर में क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मसीही बरादरी की सोसाइटियों, गिरजाघरों और सड़कों पर क्रिसमस की तैयारियां नजर आ रही हैं। पहली मर्तबा है कि हमारी मसीह बरादरी जो है उसके लिए इतना कमेंडेबल काम हुआ है। इस्लामाबाद के सेक्टर F6 से गुजर हो तो फ्लावर मार्केट के सामने सड़क पर नस्ब ये क्रिसमस ट्री नजर आता है। क्रिसमस ट्री इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से लगाया गया है। क्रिसमस ये बहुत अच्छा है और इसमें गिफ्ट भी है। इसमें बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि काफ़ी अरसे के बाद जो है वो मिनोरिटी को जो है चांस मिल रहा है कि वो आगे बढ़ चढ़ के जो है वो अपने इस क्रिसमस के प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर सके। हमारी अभी चर्नीज़ वगैरह बनना शुरू हो रही हैं, लेकिन मज़ीद उसमें ये काम हुआ है कि इंतज़ामिया ने हमसे पहले ट्री वगैरह लगा लिया है। ये F62 में हमने देखा पहली बार चौक में, तो हमें खुशी है। रात के वक्त जगमग करता ट्री खूबसूरत मंजर पेश करता है। क्रिसमस ट्री से फूटती रोशनियां आलमी बरादरी को एहसास दिला रही हैं कि पाकिस्तान पुरअमन और रोशन ख्याल मुल्क है, जहां अक़लियतें महफूज भी हैं और अपने त्यौहार मनाने के लिए मुकम्मल आज़ाद भी। जो भी यहां से गुजरता है एक बार रुक कर इस खूबसूरत ट्री का नज़ारा जरूर करता है। क्रिसमस ट्री सजाना एक कदीम रिवायत है। इसके लिए सनोबर या पाइन का मसनूई दरख्त इस्तेमाल किया जाता है। मसीही बरादरी क्रिसमस से एक हफ्ते कबल इस दरख्त की सजावट कर लेती है। इस रिवायत का मकसद ये है कि नया साल शुरू होने वाला है, जो लोगों की जिंदगियों में खुशियाँ लाएगा। पाकिस्तान में भी क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सड़क पर क्रिसमस ट्री सजाकर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का पैगाम दिया है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, इसके साथ ही कैबिनेट आवर का वक्त मुकम्मल हुआ। हमें हमारी न्यूज़ टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ रहिए।